হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু বিএসএসিআই। বিএসএসিআই বেলুড়ে তোমাদের সকলকে স্বাগত। সার্চ টু রিসার্চ এই প্ল্যাটফর্মে আরো একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন আমাদের সামনে, কারণ আজকে আমাদের সঙ্গে আমরা অনেক গুণী মানুষদের একসঙ্গে পেয়ে গেছি একটি প্ল্যাটফর্মে। আমরা প্রত্যেকেই জানি বিএসএসিআই বেলুড় তথা সংস্কৃতের নিয়ে একটা পথ চলা শুরু করেছিল 2017 সালে, এবং সেই পথ চলা আজকে 6 বছর অতিক্রান্ত করে সাথে সাথে 7 বছরে। এবং আমরা গত বছর একটি নতুন ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিলাম। ইনিশিয়েটিভটা হলো সার্চ টু রিসার্চ। যারা আগামী দিনে রিসার্চ ওয়ার্ক করতে চাইছে, তারা রিসার্চটা কিসের উপরে করবে, কি তার সাবজেক্ট হতে পারে, কিভাবে এগোবে, তার বিষয় চয়ন করার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টা প্রাসঙ্গিক হতে পারে, কি জাতীয় কাজ হয়েছে, কি জাতীয় কাজ হচ্ছে এবং কি জাতীয় কাজ আগামী দিনে হতে পারে, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে মূলত আমাদের পথ চলা শুরু হয়েছিল। এবং দেখতে দেখতে প্রায় 1 বছরের একেবারে প্রাগ মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এবং সেখানে দাঁড়িয়ে আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি সেটা হচ্ছে স্কোপ অফ রিসার্চ ইন সংস্কৃত কম্পিউটেশনাল লিঙ্গুইস্টিক্স। আমরা প্রত্যেকেই সংস্কৃতের ছাত্রছাত্রীরা সংস্কৃত বলে গর্বিত। যখনই কেউ জিজ্ঞাসা করা হয় কেন সংস্কৃত পড়ছো, না সংস্কৃত কম্পিউটারের জন্য একদম পারফেক্ট একটি ল্যাঙ্গুয়েজ, লিঙ্গুইস্টিক্স, এনএলপি, অনেক কথা আমরা আওড়াই, কিন্তু বাস্তব বিষয়টা ঠিক কি সেটা আমরা অনেকেই জানি না। আমরা বলি যে সংস্কৃত ভাষা দেবভাষা, নাসা থেকে শুরু করে ইসরো প্রত্যেকেই সংস্কৃতকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে, কম্পিউটার সব থেকে ভালো বোঝে সংস্কৃত ভাষা। কিন্তু এই আওড়ানো বুলির বাইরে গিয়ে ঠিক কিভাবে কাজ হচ্ছে সেটা আমরা জানি না, বা কিভাবে রিসার্চ ওয়ার্ক হতে পারে এটার উপরে, সে বিষয়েও আমরা ওয়াকিবহল। আজকে এই সেশনে আমরা এমন একজন গুণী মানুষকে পেয়ে গেছি যার হাত ধরে আমরা একটু শুনবো, একটু যে কথাগুলো আওড়াতাম তার মর্ম অর্থগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করব, অনুধাবন করার চেষ্টা করব। এবং আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন, নিশ্চয়ই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বা আমাদের পোস্টারেও দেখেছেন, ডক্টর কে বর্ণলক্ষ্মী ম্যাডাম। তো বর্ণলক্ষ্মী ম্যাডামকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি বিএসএসিআই বেলুড় তথা সংস্কৃতিতে। পরিচয় বোধহয় আর করানোর নেই, কারণ ম্যাডামের নামটুকুই যথেষ্ট, কিন্তু তবুও পরিচয়টা করাতে হয়। উনি ডেপুটি ডাইরেক্টর, সংস্কৃত একাডেমি, ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি, হায়দ্রাবাদ, এবং প্রফেসর, স্কুল অফ লিঙ্গুইস্টিক্স, ইউনিভার্সিটি অফ সিলিকন, আন্ধ্রা, ইউএসএ। আজকে এরকম একজন গুণী মানুষকে আমরা তো পেয়ে গেছি, তার সাথে সাথে এই প্ল্যাটফর্মে আজকে আমাদের সকলের প্রিয় গিরিধারী পান্ডা স্যারকেও পেয়ে গেছি, এবং সঙ্গে পেয়েছি সুতপা রয় ম্যাডামকে। সব মিলিয়ে আজকের সন্ধ্যাটা যুব দিবসের আগে একটা যেন চাঁদের হাট, যারা আগামীর যুব সমাজকে পথ দেখাবে। তো আজকে আর বেশি কিছু বলে আমি সময় নষ্ট করব না। আমি প্রথমেই স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য আমাদের প্রতিনিধি অনন্যা বর্মনকে অনুরোধ করব। অনন্যা। নমস্কার। বিএসএসইআই সার্চ টু রিসার্চ ইতি পক্ষতঃ সমাগতেভ্য সর্বেভ্য সর্বশ্চ দর্শকেভ্য সায়াহ্নকালীনাং শুভেচ্ছাং হার্দং হতপঞ্চ বিনিবেদয়ামি। অদ্য अस्माभिः सह उपस्थिता अस्ति শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বর্ণলক্ষ্মী কাঞ্জিগুলা মহোদয়া। বিষয়শ্চ তাবৎ সংস্কৃত সমন্বিতায়াং সংগণিकीये ভাষাশাস্ত্রে সম্ভাবিতা শোধ বিষয়া। তত্র চ অহং সম্পূর্ণরূপেণ বিএসএসইআই সার্চ টু রিসার্চ পক্ষতঃ মহোদয় সুস্বাগতং দহরামি। সত্রগমনায় ধন্যবাদং চ নিবেদয়ামি। এষা মহাভাগা ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হায়দ্রাবাদ ইতি স্থানাৎ স্বস্য সম্পূর্ণাং উচ্চশিক্ষাং শোধকার্যং চ সম্পাদ্য ইদানীং তত্রৈব সংস্কৃত অধ্যয়ন সংকায়ে ডেপুটি ডিরেক্টর রূপেণ শোভমানা अस्ति।
अपि च सा वरिष्ठा अध्यापिकारूपेण यूनिवर्सिटी ऑफ सिलिकॉन आन्ध्र इति अमेरिकादेशस्य विश्वविद्यालये कार्यरता अस्ति। पलायित चणक साहसे श्री इति तया अनुदितो प्रसिद्धो ग्रन्थः। तस्या प्राय पञ्चपुस्तकानि सन्ति। सा एकादश ग्रन्थान् सम्पादितवती। भारतवर्षस्य प्रसिद्धासु संस्कृतसंस्थासु सा सदस्या अस्ति। तस्मै भूयांसि नमांसि। अपि च अस्माभिः प्राप्तो श्रद्धेय अध्यापक गिरिधारी पण्डा महाभागः। स एव अद्यतन सत्रस्य विशिष्टो अतिथि। व्याकरणादि शास्त्रेषु तस्य अध्ययनं योगदानं च सर्वे जानन्ति। स खलु मेदिनीपुरे स्वयंशासिते महाविद्यालये स्नातकोत्तर विभागं सतेजसा अलङ्करोति। तस्मै प्रणामः अभिनन्दनानि च। अपि च अस्माकम् अभिभावकत्वेन उपस्थिता वर्तते सत्यपाराय महाभागा। तस्मै अपि अभिनन्दनानि प्रणाम च निवेद्यन्ते। अविद्या। नमस्ते महोदय, अभी शुरू कर सकते हैं। नमस्सभायै। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भारतीय संस्कृत संस्कृति इति एतस्याः संस्थायाः यः कार्यक्रमः इदानीं प्रचलति तस्य विषयः स्कोप ऑफ रिसर्च इन संस्कृत कॉम्पिटिशन लिंग्विस्टिक्स अस्ति। अहम् अल्पं संस्कृतेन अनन्तरं यथामति हिंदी भाषया च व्याख्यानं करिष्यामि। अस्य व्याख्यानसत्रस्य जॉइंट कोऑर्डिनेटर समन्वयिका अस्ति डॉक्टर सुतपाराय महोदय। तस्यै महाभागायै अहं सस्नेहं प्रणामाञ्जलिं निवेदयामि। अपि च अतिथिरूपेण गौरवातिथिरूपेण डॉक्टर गिरिधारी पाण्डा महोदयाः उपस्थिताः। तेभ्यः अपि अहं सभक्तिकं प्रणामाञ्जलिं समर्पयामि। हम पीपीटी के माध्यम से मैं अपना विषय को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पीपीटी के बाद और भी कुछ अंतर्जाल के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ। एक पीपीटी खोलने दीजिए। पीपीटी आपको दिख रहा है? हाँ मैम, दिख रहा है। हाँ। हाँ, स्कोप हाँ, ऑफ शुरू कर रिसर्च सकते हैं। इन हाँ, स्कोप ऑफ रिसर्च इन संस्कृत कॉम्पिटिशन लिंग्विस्टिक्स, ये है आज का व्याख्यान का विषय। तो संस्कृतम और कंप्यूटर साइंस। संस्कृत तो एंशिएंट इंडियन डिसिप्लिन में आता है और कंप्यूटर साइंस मॉडर्न डिसिप्लिन के अंतर्गत है। मगर इन दोनों का सम्मिश्रण जो है उसको हम बोलते हैं संस्कृत कॉम्पिटिशन लिंग्विस्टिक्स। कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिसिप्लिन्स, एक एंशिएंट डिसिप्लिन और दूसरा मॉडर्न डिसिप्लिन। इन दोनों को मिलाकर जब हम एक नया शोध अनुसंधान का क्षेत्र
आविष्कार कर चुके हैं, उसका नाम है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च फील्ड संस्कृत कॉम्पिटिशन लिंग्विस्टिक्स। क्या प्राचीन काल का ये संस्कृत मॉडर्न डिसिप्लिन जो है संस्कृत कंप्यूटर साइंस, इन दोनों का सम्मिश्रण हो सकता है? जी हो सकता है, क्योंकि संस्कृत में जो भी शास्त्र है, उन शास्त्रों में जो भी सिद्धांतों का आविष्कार कर चुके हैं हमारे विद्वान लोग, वो सिद्धांत सार्वकालिक है, सार्वत्रिक है। तो संस्कृत शास्त्रों का सिद्धांतों के आधार से कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स कुछ पा सकता है, और संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स या कंप्यूटर साइंस भी कुछ संस्कृत के लिए प्रदान कर सकता है। ये संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, इस अनुसंधान क्षेत्र का क्या प्रयोजन होगा? हमारा जो प्राचीन परंपरा है, भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसका समसामयिकता को हम प्रमाणित कर सकते हैं, और उस प्राचीन ज्ञान परंपरा का उद्धार भी कर सकते हैं। व्याकरण शास्त्र है, मीमांसा शास्त्र, न्याय शास्त्र। वेदांगों में एक है व्याकरण शास्त्र, और दर्शनों में मीमांसा और न्याय शास्त्र। एक उदाहरण ले रहे हैं, इन तीन शास्त्रों का उदाहरण ले रहे हूँ। व्याकरण शास्त्र में कारक सिद्धांत है, और मीमांसा शास्त्र और न्याय शास्त्र में कुछ ऐसे सिद्धांत है जो भाषा शास्त्र में उपयुक्त हो सकते हैं, उपकारी हो सकते हैं। मीमांसा शास्त्र का अन्विताभिधानवाद है और एक अभिहितान्वयवाद। इन दोनों में जो सिद्धांत है, उस सिद्धांतों के आधार से वाक्य विश्लेषण कर सकते हैं। तो उस सिद्धांत के आधार से ये संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, ऐसे सिद्धांतों के आधार से संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स आविष्कार होता है। तो इन संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, इस अनुसंधान क्षेत्र से जो भी आविष्कार हुआ है, होने वाला है, उससे क्या होगा? संस्कृत अध्ययन क्षेत्र का पूरा चित्र बदल जाएगा, और ये संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स अनुसंधान क्षेत्र में जो भी साधन, टूल्स का निर्माण हुआ है, उससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। ट्रांसलेशंस कर सकते हैं, और कुछ प्राचीन ग्रंथों का विश्लेषण कर सकते हैं। अभी अभी मेरे परिचय दिए थे इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के कार्यकर्ता हैं। मेरे बारे में बताए थे कि मैं डिप्यूटी डायरेक्टर हूँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी संस्कृत एकेडमी में, और प्रोफेसर हूँ सिलिकॉन यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ ये सिलिकॉन यूनिवर्सिटी एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है। हम प्रत्यक्ष नहीं पढ़ाते हैं, परोक्ष अध्ययन करते हैं, परोक्ष अध्यापन करते हैं। परोक्ष अध्यापन के लिए एक ही साधन होता है, कंप्यूटर। तो इस कंप्यूटर के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तो ये है साधन। और हम क्या पढ़ाते हैं क्लासरूम में? कुछ काव्य लेते हैं, शास्त्र लेते हैं। काव्य है तो कुमार संभव पढ़ाते हैं, शास्त्र लिए तो कुछ कारक, समास, संज्ञा, ऐसे ग्रंथों का अध्यापन करते हैं। तो कैसे पढ़ाते हैं? अगर संप्रदायबद्ध क्लासरूम है, तो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल टीचिंग मेथोडोलॉजी है, तो हम ब्लैक बोर्ड लेते हैं, एक पुस्तक लेते हैं, और चौक पीस, ये सब रहता है क्लासरूम। मगर ये वर्चुअल क्लासरूम में ये सब नहीं होता है ना, तो हम पीडीएफ के सहायता से पढ़ाते हैं। मगर इसका भी जरूरत नहीं, साक्षात ई बुक्स का निर्माण कर सकते हैं। उसके लिए
ये संस्कृत कंपटीशन लिंग्विस्टिक्स का सहायता चाहिए। तो ये संस्कृत कंपटीशन लिंग्विस्टिक्स अनुसंधान क्षेत्र में बहुत सारे विद्वान काम कर रहे हैं। उम्र में बड़े भी हैं, बहुत छोटे भी लोग, छोटे लोग भी हैं, पंडित भी हैं और उनके शिष्य भी हैं। शायद हजारों लोग इस क्षेत्र में, संस्कृत कंपटीशन लिंग्विस्टिक्स अनुसंधान क्षेत्र में कार्यनिरत है। ऐसे लोग कुछ टूल्स, संस्कृत कंपटीशन लिंग्विस्ट टूल्स का निर्माण कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। ये टूल्स कहाँ मिलेंगे? तो मैं यहाँ कुछ वेबसाइट्स का लिस्ट डिस्प्ले कर रही हूँ। एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में संसाधनी बोलकर एक लिंग्विस्टिक टूल किट है, और एक दूसरा सेकंड वाला है, दूसरा है इंडिया, संस्कृत इंडिया फ्रांस, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी संस्कृत डिपार्टमेंट के विद्वान भी कुछ टूल्स आविष्कार कर, टूल्स का निर्माण कर चुके हैं। और संस्कृत लाइब्रेरी, कर्नाटका संस्कृत यूनिवर्सिटी में व्याकरण शास्त्र विभाग के विद्वान संभाषा नाम के साधनों का आविष्कार कर चुके हैं। और sanskritworld.in एक साधन है, टूल्स का प्लेटफॉर्म है। मुंबई IIT का एक डिपार्टमेंट, संस्कृत डिपार्टमेंट के विद्वान भी वर्ड नेट ऐसा एक साधन का, टूल का निर्माण कर चुके हैं। तो अभी हम एक वेबसाइट को, एक अंतर्जाल पुट का आश्रय लेकर, एक वेबसाइट के आश्रय लेकर वहां क्या क्या साधन निर्माण हो चुका है, उसका स्वरूप क्या है, वो सब संक्षिप्त में जानकर उसके बाद तो अब तक कितना आविष्कार हो चुका है और फ्यूचर में किसका आविष्कार कर सकते हैं, इसका व्याख्यान होगा। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे। ये पीपीटी को मैं यही बाद में मैं फिर डिस्प्ले कर दूंगी। अभी तो एक वेबसाइट डिस्प्ले कर दूंगी। ये वेबसाइट है, इसका नाम है संसाधनी, ये संस्कृत कॉम्पिटिशनल टूल किट। यहाँ देखे तो हमको टूल्स, एक बार है, टूल बार है, टूल्स है। यहाँ दो सेकंड पोजीशन में डिक्शनरीज है, ई डिक्शनरीज, और कॉर्पस है, डिजिटल रिसोर्सेस, टैगिंग गाइडलाइंस, टैग्ड कॉर्पोरा, ऐसा 3 सेक्शंस है। बाद में पब्लिकेशंस है, शोध कार्य यानी थीसिस भी मिलेंगे, और एक सर्च इंजन गवेषिका है, अनुसारक, ये भी एक साधन है, टूल है, एंड ई रीडर्स भी है। तो पहले हम यहाँ आएंगे, टूल्स। ये टूल्स क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, पद, जो भी पद हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, संस्कृत कुछ काव्य पढ़ते हैं, संस्कृत का काव्य पढ़ते हैं, तो पहले हम एक एक श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक में पद विच्छेद करके पदों का विश्लेषण करते हैं। तो ये पद विश्लेषिका टूल है, उससे हम, उसके सहायता से हम पद का कुछ काव्य का जो भी पद है, पद प्रयोग है, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। इसके बाद संधि टूल भी है। एक संस्कृत काव्य लेंगे तो उसका श्लोक का
पहले विच्छेद करते हैं, पद विच्छेद करते हैं। सो पद विच्छेद करने के लिए यहाँ संधि और संधि विच्छेदिका 2 टूल्स है। उसके बाद प्रक्रिया संदर्शनी, इसके बारे में बाद में बता सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं उसको। और हम भाषा संस्कृत अध्ययन के आरंभ में हम जनरली हम पढ़ते हैं शब्द मंजरी, धातु मंजरी और समास, कारक, ये सब पढ़ते हैं। तो यहाँ कुछ वो शब्द मंजरी का ही एक यांत्रिक रूप है नाम रूप निष्पादिका, और धातु मंजरी का यांत्रिक आविष्कार है क्रिया रूप निष्पादिका, कृदंत रूप निष्पादिका और तद्धित रूप निष्पादिका, ऐसा है। तो इतने टूल्स हैं। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण बताऊंगी। एक पद विश्लेषिका टूल है, तो मैं वो टूल का ओपन करके मैं बताना चाहती हूँ, डिस्प्ले करना चाहती हूँ। हाँ, ये देखिए यहाँ टेक्स्ट बॉक्स है, एंटर द वर्ड ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। मैं एक नाम लूंगी, एक वर्ड लूंगी, एक शब्द चुन लूंगी। रामः, आपको दिख रहा है ना वेबसाइट? जी मैम दिख रहा है। हाँ, तो रामः ये शब्द को मैं एंटर करके सबमिट कर रही हूँ, तो यहाँ विश्लेषण दिखता है, पद का विश्लेषण। एक 2 विश्लेषण, यांत्रिक विश्लेषण डिस्प्ले हो चुकी है। तो यहाँ राम, पूम, एक, एका नंबर है, एक न्यूमरल है और एक, और दूसरा विश्लेषण है रा, कर्तरी, लट, उ, बहु, परस्मैपदी, रा, अदादिहि। जो संस्कृत जानता है वो समझ सकता है ये विश्लेषण कैसा विश्लेषण है ये। तो पहला वाला है नाम पद विश्लेषण है, और दूसरा विश्लेषण है क्रियापद विश्लेषण। तो यहाँ जो यांत्रिक विश्लेषण दिख रहा है, उससे हमको ये ज्ञान मिल रहा है कि रामः शब्द नाम रूप भी है और क्रिया रूप भी है। जिसको सीमित नॉलेज है, सीमित ज्ञान है, लिमिटेड नॉलेज है, संस्कृत का लिमिटेड नॉलेज है, बिगिनर है, उन लोगों को ये मालूम नहीं होता कि रामः एक क्रियापद भी है। ये यंत्र के माध्यम से, इस टूल के माध्यम से, सहायता से हम एक एक शब्द का, संस्कृत शब्द का पूरा विश्लेषण जान सकते हैं। ये है इसका विशेषता। तो यहाँ देखिए, राम शब्द, रामः इज द इनपुट और आउटपुट 2 एनालिसिस है, 2 एनालिसिस है। और इससे और कितने क्या जान सकते हैं? तो यहाँ संस्कृत कंपटीशन लिंग्विस्टिक्स है ना, तो शब्द का विश्लेषण कैसे करना है, कैसे इंफॉर्मेशन देना है, यूजर को कैसे समझाना है, इसके बारे में संस्कृत कंपटीशन लिंग्विस्ट सब मिलकर, स्कॉलर्स मिलकर बैठकर विश्लेषण का डिस्प्ले कैसे करना है, ये सब उसका रूल्स लिखते हैं। तो रामा शब्द का नामपद विश्लेषण कैसा करना है और क्रियापद का विश्लेषण कैसा करना है। तो हर एक पद का, हर एक शब्द का टैगिंग करते हैं, उसके टैगिंग के लिए गाइडलाइंस बनाते हैं। तो रामा का नाम रूप शब्द विश्लेषण का टैगिंग कैसे करना है। तो यहाँ पुम है,
एक है, नंबर एक है और ए का भी है। तो इसका जो संस्कृत जानता है वो उनको मालूम है, ये रामा पुल्लिंग है और ये नंबर 1 बता रहा है कि प्रथमा विभक्ति है और एक वचन। जेंडर, केस और नंबर, इन तीनों का समाचार, ये 3 समाचार हमको यहाँ से मालूम हो रहा है, इस मशीन एनालिसिस से मालूम हो रहा है। तो ऐसा इंफॉर्मेशन एक एक पद का टैगिंग करते हैं। ये रामा शब्द न केवल नामरूप शब्द है बल्कि ये क्रिया रूप भी है। तो इसका भी कैसे टैगिंग करना है, तो हर शब्द का, हर क्रिया पद का, कर्तरी, कर्मणि, ऐसा भावे, ऐसा 3 पद होते हैं, प्रयोग होते हैं। तो वो कर्तरी है तो कर्तरी का डिस्प्ले होता है, यदि कर्मणि है तो कर्मणि, नहीं तो भावे। और लकार क्या है वो भी यहाँ लट वो लकार बता रहा है, ऊ बोले तो उत्तम पुरुष है, बहु बहुवचनम नंबर बता रहा है। और परस्मैपदी तो धातुओं का तो 2 गण है, 2 क्लासेस हैं, 2 वर्ग है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी, और तीसरा भी है उभयपदी। तो यहाँ परस्मैपदी और रा ये धातु है और अदादिगण है। सो हर एक शब्द का ऐसा टैगिंग करके डिस्प्ले करते हैं। इसके बारे में, ये टैगिंग के बारे में टैगिंग गाइडलाइंस बनाते हैं और स्कॉलर्स को देते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स को। तो स्कॉलर्स हर शब्द का ऐसा टैगिंग करते हैं। हम जब यूजर जब एक एक पद का विश्लेषण पाना चाहता है और एंटर करता है तो ऐसा विश्लेषण हमको मिलता है। इससे हम काव्य का विश्लेषण कर सकते हैं। तो शब्दों का, इससे आगे भी हम, यहाँ तो नाम रूप शब्द का विश्लेषण है और धातु रूप क्रियापद का विश्लेषण डिस्प्ले हो रहा है, मशीन हमको आउटपुट के रूप में दे रहा है। इससे आगे भी हम पा सकते हैं इंफॉर्मेशन, समाचार पा सकते हैं। ये हाइपर टेक्स्ट है, राम और ये राम वो दोनों। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो और एक विंडो ओपन होता है। आपको ये विंडो डिस्प्ले करना है तो कोशिश करूंगी, दूसरा विंडो पर जाना है। अब दिख रहा है क्या, राम शब्द का डिस्प्ले हो रहा है क्या? हाँ, ये देखिए यहाँ राम शब्द का सभी विभक्तों में, 7 विभक्तियों में और संबोधन प्रथमा विभक्ति में भी यहाँ शब्द का शब्द रूप दिख रहे हैं। तो आगे भी हम कुछ देख सकते हैं, ज्ञान पा सकते हैं। तो यहाँ राम शब्द का सभी विभक्तियों में रूप दिख रहे हैं। तो इसको भी कैसे डिस्प्ले करना है, लिंग्विस्ट सभी बैठकर इसका कैसे प्रदर्शन करना चाहिए, या यंत्र से कैसे इसका डिस्प्ले, आउटपुट कैसे दिखाना है। और इससे है ना, यहाँ जो प्रातिपदिक है राम, सभी जानते हैं प्रथम 7 विभक्तियों के रूप है। उसके बाद एक ऊपर प्रातिपदिक भी दिख रहा है, ये भी हाइपर टेक्स्ट है। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे तो 4 कोश लिंक मिलेगा, 4 कोशों का, संस्कृत कोशों का, डिक्शनरीज का लिंक मिलेगा। शायद ये भी दिख रहा है। हाँ, तो चार डिक्शनरीज, अमरकोश है। तो इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो, चुनेंगे तो जो भी लेक्सिकल इंफॉर्मेशन है कोश में, जो भी उस राम पद का जो भी जितना भी इंफॉर्मेशन है, पर्यायवाची शब्द है, बहुत सारे अमरकोश में बहुत सारे वर्ग होते हैं। तो एक एक वर्ग में राम पद का जितना भी लेक्सिकल इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले होता है।
तब मैं सिर्फ अमरकोश ही नहीं, आपटे कोश का भी एंट्रीज देखना चाहती हूँ, तो वो भी मैं चुन लूंगी। तो नीचे आपटे डिक्शनरी का लेक्सिकल इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले होगा। तो यहाँ राम है और वो रम धातु है, कर्तरी प्रयोग है, घई प्रत्यय है। इसका पूरा भिन्न भिन्न संदर्भ में भिन्न भिन्न अर्थ, क्या क्या अर्थ है राम का। सुहावना, सुहावना, आनंदप्रद, मलिन, धूमिल, काला, श्वेत। और उद्धरण, कितने ग्रंथों में राम शब्द का प्रयोग हुआ है, किस अर्थ में हुआ है, रामायण में क्या अर्थ है, महाभारत में। तो राम, दशरथ पुत्र राम भी है, बलराम भी है, परशुराम भी है। तो किस ग्रंथ में, किस अर्थ में, किस संदर्भ में इस्तेमाल हुआ है, ये सब इंफॉर्मेशन, ये सब समाचार हम इस टूल से पा सकते हैं। और मैं अंग्रेजी में जानना चाहती हूँ लेक्सिकल इंफॉर्मेशन, तो ये भी उपलब्ध है, मोनियर विलियम्स डिक्शनरी। उसको चुनेंगी तो, सेलेक्ट करेंगे तो वो लेक्सिकल इंफॉर्मेशन इंग्लिश में भी आएगा, अंग्रेजी में भी। तो यहाँ है राम, तो डार्क कलर, ये सब बहुत सारा इंफॉर्मेशन इंग्लिश, अंग्रेजी में भी मिलेगा, तो सारा इंफॉर्मेशन। और हेरिटेज और एक डिक्शनरी भी मिलेगा, हेरिटेज। ये तो संस्कृत और फ्रेंच डिक्शनरी है, ये फ्रेंच भाषा का लेक्सिकल इंफॉर्मेशन है। तो 4 डिक्शनरीज। एक टूल को मैं एक टूल के आधार से मैं इतना इंफॉर्मेशन दी। तो ये वो मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर है, वर्ड पद विश्लेषिका। रामः ये एंट्री है, इनपुट है, उसका 2 एनालिसिस मिल चुके हैं हमको। और एक एनालिसिस को मैं रामा इज नाम पद का विश्लेषण है, उस प्रातिपदिक को मैं क्लिक करूंगी तो 7 विभक्तियों में रूप, जो शब्द रूप है वो दिखेंगे। और प्रातिपदिक के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये सारे लिंक्स, डिक्शनरी के, कोश के लिंक्स भी दिखाएंगे। और एक एक डिक्शनरी को मैं चुन लेंगे तो उस डिक्शनरी का एंट्रीज भी हमको डिस्प्ले होंगे। ये रिसर्चर्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अभी तो 4 डिक्शनरीज का एंट्रीज हमको मिलेंगे, मगर संस्कृत इतना समृद्ध, एक बड़ा एक भांडागार जैसा है। इट इज एज वास्ट एज एन ओशन। तो इंडियन लेक्सिकॉन्स ऐसा एक ग्रंथ है, उसके हिसाब से 50 के ऊपर कोश है। अगर ऐसे 50 कोशों का ऐसा आविष्कार है, तो ऐसा साधन मिले, तो टूल मिले, तो हम बहुत सारे कर सकते हैं। तो राम शब्द यहाँ तो काव्य में तो दशरथ पुत्र, बलराम का पुत्र, यानी तो परशुराम, बलराम, परशुराम, ऐसा दशरथ राम, ऐसा मिलेगा समाचार। अगर मैं गुणः और एक शब्द लूंगी, गुणः, इस गुण का विश्लेषण, हम गुण का विश्लेषण करेंगे तो काव्य में तो गुण का अर्थ होगा क्वालिटी, क्वालिटीज, गुड, बैड, ऐसा। अगर काव्य शास्त्र का अर्थ लेंगे तो भिन्न अर्थ है, माधुर्य, ओजः, प्रसाद, ऐसा 3 गुण, नहीं तो 10 गुण भी है। मगर ये शब्द का अर्थ शास्त्रों में इसका अर्थ अलग है। अगर हम लेंगे तो आयुर्वेद में तो वात, पित्त, कफ गुणाः। अगर दर्शन शास्त्र में एक गुण शब्द पारिभाषिक पद होता है, वहां तो गुण बोले तो सत्व, रजस, तमो गुणाः। तो एक एक शास्त्र का एक एक पारिभाषिक पदकोश रहता है। तो बहुत सारे वेदांत कोश है, न्याय कोश, व्याकरण कोश, समस्त पद का कोश, ऐसा भिन्न भिन्न शास्त्रों का भिन्न भिन्न कोश है। इन सारे कोशों का समावेश यहाँ कर सकते हैं।
ये है स्कोप ऑफ रिसर्च। तो मैं यहाँ एक पद लेकर उसका विश्लेषण करके उसका जो भी लिंक्स है वो डेमोन्स्ट्रेट कर चुकी हूँ। तो हम राम विश्लेषण करके यहाँ नाउन जनरेटर, मैं जब राम शब्द के ऊपर पीछे लाना चाहती हूँ। राम शब्द का पहले शब्द रूप मिलते हैं, बाद में ये शब्द रूप दिख रहा है ना? एक मिनट, हाँ मैम, दिखाई दे रहा है। शब्द रूप दिखाई दे रहा है क्या? हाँ मैम, नहीं अभी डिस्प्ले नहीं हुई है हाँ, मैम अभी हो रहा स्क्रीन है। में। हाँ तो यहाँ हाँ राम शब्द है। राम शब्द का ये दो विश्लेषण है। दो, अगर राम शब्द के ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो 7 विभक्तियों का रूप है। इसके बाद प्रातिपदिक है, ये सब। अगर इसका 4 लिंक्स भी मिलेंगे कोशों का, उसका लेक्सिकल इंफॉर्मेशन भी हमको मिलेगा। तो अमरकोश, एप्टे, मोनियर विलियम्स, हेरिटेज। अभी थोड़ा क्वेश्चन के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। शेयर द टैब। इस वेबसाइट में हमको मिलेगा 2 कोश। अभी हम जो देख चुके हैं राम शब्द का एंट्रीज, 4 डिक्शनरी में एंट्रीज देख चुके हैं। तो अमरकोश, मोनियर विलियम्स और एप्टे डिक्शनरी, हेरिटेज का। तो अभी हम चलेंगे अमरकोश। अमरकोश का कैसा, ई अमरकोश। हम जो डिक्शनरी एंट्रीज देख चुके हैं उसका ओरिजिनल टूल कहाँ है उसको मैं दिखाना चाहती हूँ। उसका विशेषताएं भी मैं डिस्प्ले करके बताना चाहती हूँ। आपको ये डिक्शनरी अमरकोश का डिस्प्ले हो रहा है या नहीं? हाँ मैम, डिस्प्ले हो रहा है, दिख रहा है मैम। इसका स्वरूप क्या है? अभी प्रोसेस हो रहा है, थोड़ी देर लगेगा। हाँ, नॉलेज नेट ऑफ अमरकोशा, अमरकोश ज्ञान जाल। हाँ, ये है उसका पेज, होम पेज है, अमरकोश ज्ञान जाल। ये अमरकोश का पूरा स्ट्रक्चर क्या है और कॉम्पिटिशन लिंग्विस्टिक्स दृष्टि से कैसे इसका निर्माण हुआ है, इसका रचना क्या है, इसके बारे में थोड़ा विवरण दूंगी मैं। अभी प्रोसेस हो रहा है। तो ये दिख रहा है क्या आपको? इनपुट एनकोडिंग, प्रातिपदिका, सेलेक्ट रिलेशन। हाँ मैम, दिख रहा है। हाँ नहीं, मैं उसको शेयर कर दूंगी। एक मिनट, शेयर दिस टैब। ओके, अभी दिख रहा है। हाँ मैम। हाँ, तो यहाँ देखिए टेक्स्ट बॉक्स है। इन प्रातिपदिक, यहाँ हम प्रातिपदिक देंगे तो वही शब्द देंगे राम। तो थर्ड टेबल है सेलेक्ट रिलेशन।
आउटपुट एनकोडिंग वो भी है, सेलेक्ट रिलेशन। हमर कोश का प्रयोजन क्या है? पर्यायवाची। वो ये एक थेसॉरस है, इंडियन एंशिएंट इंडियन थेसॉरस है, तो पर्यायवाची शब्दों का एक कोश है। तो इस ई अमरकोश, ये तो अमरकोश मगर ई अमरकोश, इसका विशेषता क्या है? तो ये न केवल पर्यायवाची शब्दों का प्रदर्शन करता है, बाकी ऑन्टोलॉजी वैशेषिक शास्त्र के दृष्टि से ये कोश का विवरण हम पा सकते हैं, देख सकते हैं। कितने रिलेशंस है देखिए, सेलेक्ट रिलेशन ऐसा एक इंस्ट्रक्शन है, मगर कितने रिलेशंस है? पर्यायवाची भी है, पर्यायवाची है, पदार्थ तत्व विचार ऑन्टोलॉजी के दृष्टि से है, होल अवयवी अवयव पराजाति अपराजाति जन्य जनक पत्नी पति सेवक स्वामी वैशिष्ट्यम संबंधित आजीविका ऑल रिलेशंस, इतने चॉइस है, इतने विकल्प है। हम तो पर्यायवाची देखते हैं ज्यादा से ज्यादा अमरकोश से, तो पहले ये देखेंगे। हम अभी अभी देख चुके हैं एक राम शब्द मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर के माध्यम से। तो यहाँ हम राम इनपुट दे चुके हैं, प्रातिपदिक है, हेड वर्ड, रूट वर्ड और बेस वर्ड। सबमिट होने, पर्यायवाची देखना चाहते हैं और हम सबमिट कर चुके हैं। इसका आउटपुट डिस्प्ले होगा, क्या डिस्प्ले होगा देखेंगे। हम पहले भी देख चुके हैं मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर, वहां भी ये लिंक है, नाउन जनरेटर का लिंक और उसके बाद डिक्शनरी का लिंक। तो ये सब एंट्रीज हैं, लेक्सिकल इंफॉर्मेशन क्या है। राम का मतलब बलभद्र, प्रलंबग्न, बलदेव, अच्युताग्रज, रेवती रमन, राम, कामपाल, हलाय, ऐसा सारे। सिंहादि वर्ग में भी है कृष्णसार। तो हमारे मन में राम का शब्द सुनने के बाद दशरथ राम का ही अर्थ हमारे मस्तिष्क में स्फुरित होगा, बुद्धि में स्फुरित होगा। मगर ये डिक्शनरी का इंफॉर्मेशन से हम ये देख सकते हैं कि सिंहादि वर्ग में ये एक प्राणी है, मृग है, और धी वर्ग में तो ये श्यामल ऐसा रंग भी बता रहा है, नील रंग, कृष्ण रंग, मेचक रंग ऐसा। विशेष निघ्न वर्ग में ये विशेष, और नानार्थ वर्ग में भी कुछ रजत, शुचि, राम ऐसा मेटल्स के बारे में बता रहे हैं। राम इस शब्द का इस्तेमाल मेटल्स के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। ये रजत को भी राम बोल रहे हैं। तो इतना ज्ञान हमको मिल सकता है इससे। मैं सिर्फ पर्यायवाची भी नहीं, और इसको ऑन्टोलॉजी वैशेषिक शास्त्र के दृष्टि से भी देखना चाहती हूँ, तो मैं ऑल रिलेशंस को सेलेक्ट करके सबमिट करती हूँ। तो ऑन्टोलॉजी की दृष्टि से ऐसा राम शब्द का पूरा विश्लेषण मिलेगा। प्रोसेस हो रहा है, डिस्प्ले होगा राम शब्द का ऑल रिलेशंस। ये सभी रिलेशंस है। मूल पद है हमारा, जो एंट्री है वो राम है, राम। एक ग्राफ दिख रहा है क्या आपको? हाँ मैम, दिखाई दे रहा है हाँ। ग्राफ। तो हमारा एंट्री राम है। शुक्लादय, यहाँ वैशेषिक दृष्टि से, वैशेषिक शास्त्र के दृष्टि से इसका विश्लेषण है। शुक्ल वर्ण युक्त मनोरमम कृष्ण वर्ण। और मैं और एक दूसरा वर्ड दूंगी जिससे हमको क्लैरिटी होगा। एंट्री बदल दूंगी। एक मिनट। जो पॉपुलर वर्ड है उसको लेना चाहती हूँ मैं।
अभी विष्णु एंट्री दूंगी, मैं एंट्री दे रही हूँ विष्णु। ऑल रिलेशंस, इस ए विकल्प को चुनकर मैं सबमिट कर रही हूँ, तो विष्णु का रिलेशंस देख सकते हैं। यहाँ दिख रहा है रिलेशंस, सभी रिलेशंस। शेयर दिस स्टार, अभी आपको दिख रहा है शायद। तो हमारा एंट्री है विष्णु, ये है विष्णु। तो देखिए विष्णु, और इसका इतने सारे रिलेशंस है, पति पत्नी रिलेशन, स्वामी स्वस्वामी भाव का रिलेशन, ये सभी रिलेशंस। तो इतना ये सारे रिलेशंस कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, देखिए। थोड़ा मैं विवरण देकर बाद में बताऊंगी। तो थोड़ा विष्णु है, तो विष्णु चक्र भी है, शंख, वसुदेव, लक्ष्मी, शंख, चक्रम, गदा, खड्ग, मणि, विष्णुचाप, अश्व। और विष्णु का जो भी आयुध है और जो भी रिलेशंस है, इसको हम देख सकते हैं। और लक्ष्मी, लक्ष्मी विष्णु का पत्नी, तो पति पत्नी का रिलेशन है। शंख, चक्र, गदा, खड्ग, विष्णु और इनके इन आयुधों का रिलेशन क्या है? सेवक, सेव्य सेवक भाव है। तो पराजाति, इसका रिलेशन पराजाति है। और लक्ष्मी अर्थ भी बता रहा है यहाँ। तो ये सब मैं यहाँ कर्सर रखेंगे तो कंप्यूटर साइंस का जो भी है नोड्स, नोड बोलते हैं इसको, नोड, ये भी दिख रहा है। तो लक्ष्मी का अर्थ है धन समृद्धि। विष्णु शंख, वो तो शंख है, और आगे भी इसका इंफॉर्मेशन है शंख का। तो अपराजाति शंखवादकः, शंख शंखवादकः, सूक्ष्म शंखः, सूक्ष्म शाखा मूल युक्त वृक्षः, ऐसा आगे भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो सभी रिलेशन, विष्णु शब्द का सभी रिलेशंस को यहाँ बता रहा है। पति पत्नी का रिलेशन, सेवी सेवक का रिलेशन, और क्या है, स्वस्वामी, पराजाति, अपराजाति, संबंधित, जन्य जनक भाव, कामदेव, यहाँ देखिए कामदेव। तो कामदेव विष्णु का पुत्र बोलते हैं कामदेव पुराण के अनुसार। सो यहाँ जन्य जनक भाव संबंध है। ये ऐसा पूरा इंफॉर्मेशन शास्त्र के दृष्टि से अमरकोश का आविष्कार। तो यहाँ तो सिर्फ अमरकोश का ही ई टेक्स्ट मिलता है, मगर संस्कृत में अभी भी मैं बता चुकी हूँ 50 के ऊपर कोश है। इन सारे कोशों का ऐसा ई टेक्स्ट बना सकते हैं। तो स्कोप बता रही हूँ। तो इतना एक कोश का, अमर कोश का निर्माण हुआ है, उसका डेप्थ भी इतना है। और भी आगे जा सकते हैं, एक कोश नहीं बल्कि 50 कोशों का, बाकी जो 40 के ऊपर कोश है, उन कोशों का ऐसा आविष्कार कर सकते हैं, ऐसा निर्माण कर सकते हैं। कर्नाटका संस्कृति, ये तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी में जो संस्कृत डिपार्टमेंट है, वहाँ के विद्वान इसका आविष्कार कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। ये एक पीएचडी स्टूडेंट का पीएचडी थीसिस है, और पीएचडी थीसिस के रूप में इसका, इस टूल का आविष्कार हुआ है, निर्माण हुआ है। इसको मॉडल के रूप में लेकर, इसको मॉडल रखकर कर्नाटका संस्कृत यूनिवर्सिटी में वैजयंती कोश का निर्माण हुआ है। तो 2 डिक्शनरीज का ऐसा ई टेक्स्ट रूप मिलता है, मगर बाकी आउट ऑफ 50 कोशास डिक्शनरीज, 2 डिक्शनरीज आर अवेलेबल एज ई डिक्शनरीज, मगर बाकी डिक्शनरीज का भी हम ऐसे ही आविष्कार कर सकते हैं।
तो जो रिसर्च स्टूडेंट्स श्रद्धालु है वो ऐसा एक काम ले सकते हैं, एक डिक्शनरीज को ऐसा लेकर, ऐसा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के साथ कंप्यूटर साइंटिस्ट या कंप्यूटर साइंस विभाग के विद्वान है उन लोगों के साथ मिलकर ऐसा आविष्कार, ऐसा डिक्शनरी के बारे में ई डिक्शनरी का निर्माण कर सकते हैं। इससे अनुसंधान बहुत सरल होगा। एक जनरली रिसर्च स्टूडेंट्स डिक्शनरीज के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, मगर ये कंप्यूटर में ऐसा डिक्शनरीज मिले तो आसान होता है डिक्शनरी का काम। तो एक एरिया है ये डिक्शनरीज। और भी एक है आविष्कार, टूल्स हैं, और भी टूल्स हैं और बहुत दूसरे एरियाज भी है, वो भी दिखाना चाहती हूँ। फिर होम पेज पर जाऊंगी मैं। बार बार टैब का परिवर्तन करना होता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। Am I audible? Yes, ma'am, audible. Yes, ma'am, audible. हाँ। Yes, और ma'am. Yes, ma'am. 5 मिनट, हाँ, और 5 मिनट में खत्म कर दूंगी। तो थोड़ा एक टूल बताकर मैं एक डिक्शनरीज के बारे में मैं बता चुकी हूँ। ऐसे ही आप कुछ बताना चाहते हैं ना? बोलिए, बताइए क्या बताना चाहते हैं आप? ऑर्गेनाइजर्स कुछ बताना चाहते हैं ना, कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं ना, क्या है? अमित देजी, मेरे लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है? नहीं, नहीं, कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं मैम, आप चालू रखिए मैम।
बहुत सुंदर हो रहा है। हाँ जी। तो ऐसे डिक्शनरीज के बारे में बहुत काम बाकी है। तो एक डिक्शनरी का यहाँ मिल रहा है, मगर बाकी सब डिक्शनरीज का कर सकते हैं। और एक बताना चाहती हूँ, तो अभी जो डिक्शनरी है वो एक थीसिस का काम है। तो हम शोध कार्य यहाँ थीसिस, इस टैब में थीसिस भी मिल रहे हैं। ये पहला देखिए, शिवजा एस नायर, इस शोध विद्यार्थी का ही आविष्कार है ये ई अमरकोश। और बाकी स्कॉलर्स हैं अनिल कुमार, शैलजा जी का आविष्कार है धातु कोश, मैं वो भी दिखाऊंगी। पवन कुमार सातलूरी, ये भी आप जैसे रिसर्च स्कॉलर है, और इसका आविष्कार है समास टूल। मोनाली दास, अर्जुन सर, ये सारे स्टूडेंट्स हैं। किसके स्टूडेंट्स हैं? अंबा कुलकर्णी जी का स्टूडेंट्स हैं। और ये सभी एक एक स्कॉलर एक एक थीसिस लिखे हैं, और एक एक थीसिस बेस्ड ऑन एक एक थीसिस एक एक टूल का आविष्कार कर चुके हैं। तो यहाँ मोना अर्जुन, प्रीति पटेल, संजीव पंचाल जी का भी कारक प्रकरण का विश्लेषण है। और मधुसूदन, शैलजा, प्रीति शुक्ला, मोनाली दास, सुरेंद्र। अभी देखेंगे शैलजा जी का क्या काम है। इनका भी पीएचडी का काम है धातु कॉन्कर्डेंस, धातु पाठ है। अभी मैं दिखाई थी अमरकोश, और धातु पाठ का भी एक कॉन्कर्डेंस है, ई कॉन्कर्डेंस। इसका आविष्कार कैसे किए हैं, कैसे नियम ई डिक्शनरी के रूप में लाने के लिए वो क्या क्या कॉम्पिटिशन लिंग्विस्टिक्स दृष्टि से नियम अपनाए हैं, कैसे आविष्कार किए हैं, इसके पीछे का स्ट्रक्चर क्या है, वो सब हम यहाँ थीसिस का एक है ना, एक मिल रहा है ना यहाँ शोध कार्य थीसिस बार टूल बार में शोध कार्य है यहाँ, जो ड्रॉप डाउन बॉक्स में पूरे लिस्ट है, एक एक थीसिस मिलेगा। जो आप जब समय मिलेगा तब आप गो थ्रू ऑल दिस थीसिस, आपको मालूम पड़ेगा। तो यहाँ धातुकोश का निर्माण कैसा हो ये देखेंगे। कॉन्कर्डेंस ऑफ पाणिनीय धातु वृत्ति है। तो जब हमको मालूम है संस्कृत फील्ड में जो भी है स्टूडेंट्स है, स्कॉलर्स है, उनको मालूम है कि व्याकरण शास्त्र वालों को मालूम है कि ये पाणिनीय उपदेशों में एक है धातु पाठ। ये धातु पाठ का भी बहुत सारे व्याख्यान है, तो वो व्याख्यान का समावेश यहाँ मिलेगा। और कॉन्कर्डेंस विथ सेट, कॉन्कर्डेंस विदाउट सेट, ऐसा है। हाँ, ये देखिए धातु पाठ गण के अनुसार यहाँ धातुओं का समावेश है। भ्वादिगण पहला गण है, इसे भ्वादिगण। यहाँ धातु का अर्थ और पदी, परस्मैपदी और आत्मनेपदी, ये इंफॉर्मेशन मिलेगा। और यहाँ 3 वृत्तियों का समावेश है, माधवी धातु वृत्ति, क्षीर तरंगिणी और धातु प्रदीप। हाँ, अगर हम भू धातु का एक ब्रैकेट में भी मिल रहा है और एक ब्रैकेट के बाहर भी मिल रहा है, कुंडली के बाहर भी मिल रहा है। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे तो जो भी 10 लकारों का रूप डिस्प्ले होता है। तो ये देखिए भू का सभी 10 लकारों में रूप, आई थिंक ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है। हाँ, अभी मैं इस टैब को शेयर कर रही हूँ। हाँ, दिख रहा है। तो धातु पाठ से मैं एक धातु को चुनकर सबमिट कर चुकी हूँ, तो उस धातु का सभी 10 लकारों में सभी रूप दिख रहे हैं, डिस्प्ले कर रहा है ये टूल, ये डिक्शनरी, ये डिक्शनरी। और इसका ये भी हो सकता है, इसके आगे मैं ये भू धातु के ऊपर जितने भी प्रत्यय, और एक टैब मैं शेयर कर रही हूँ, शायद ये भी डिस्प्ले हो रहा है। हाँ, डिस्प्ले हो रहा है, देखिए
तो धातु है भू, इस धातु के ऊपर कितने प्रत्यय, कति प्रत्ययानां, कति प्रत्ययाः विधातुं शक्यते, हाउ मेनी suffixes can be employed, वो देख सकते हैं यहाँ। तो कितने प्रत्ययों को लगा सकते हैं और कितने रूप पा सकते हैं, कितने प्रातिपदिक बेस वर्ड्स पा सकते हैं, ये यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो डुतच प्रत्यय से अद्भुत, और पिप प्रत्यय से अधिभूत, त प्रत्यय से अधिभूत, घय प्रत्यय से अंतर्भाव, इनी प्रत्यय से अवश्यम भाविन, घय प्रत्यय से आविर्भाव, खच प्रत्यय से आशितम भव, अप प्रत्यय से उद्भव, उद्भाव घय प्रत्यय से। यहाँ उपसर्ग, सोपसर्ग धातु के ऊपर घय प्रत्यय लगाने से विधान चला, घय प्रत्यय का विधान से उद्भाव, सोपसर्ग धातु के ऊपर धातु के ता प्रत्यय लगाने से उद्भूत, तिन प्रत्यय से उद्भूति, अप प्रत्यय से समुद्भव, और सोपसर्ग धातु एक च्वी प्रत्यय, एक ही भाव, द्वेदी भाव, नी उपसर्ग धातु के ऊपर त प्रत्यय लगाने से निभूत, ऐसा बहुत सारे, कृष्णोच, कुखै, मु प्रत्यय, और झच ल्युट प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय से भवन, शत्रु प्रत्यय से भवत, झच प्रत्यय से भवंती, भवंत, जिच प्रत्यय से भवंती, शत्रु भवंती स्त्रीलिंग में, तव्यत भवितव्य, त्रुच से भवित्रु, इलच से भविला, इष्णुच से भविष्णु, यत प्रत्यय लृट में भूल लृट स्या, इनके कॉम्बिनेशन से भविष्यत भविष्य, ऐसे बहुत सारे, न्वल से भावक, ल्युट से भावन, ल्युट भूनिच के ऊपर ल्युट का प्रत्यय लगाने से भावना, ऐसे कितने रूप मिलेंगे, कितने प्रत्यय लगा सकते हैं इस भू धातु को, एक भू धातु के ऊपर इतने सारे प्रत्यय लगा सकते हैं और इतने सारे जनरेट कर सकते हैं प्रातिपदिक। तो वर्ड जनरेशन पावर, संस्कृत का जो पद निर्माण सामर्थ्य है, वो उसको प्रमाणित कर सकते हैं इस टूल से, कॉन्कर्डेंस ऑफ पाणिनीय धातु वृत्ति। तो भू धातु का वर्ड जनरेशन पावर, ऐसे सभी प्रत्ययों का, सभी धातुओं का पद निष्पत्ति का सामर्थ्य हम प्रूव कर सकते हैं। सो जब जो प्राथमिक स्तर में विद्यार्थी हमारे पास आता है, उनके मन में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, बहुत कठिन है, ये क्या है, इसका स्वरूप क्या है। तो हम एक ही क्लास में इस पूरा डिस्प्ले करके एविडेंसेस दिखा सकते हैं, इसका जो ग्रैंड्यूर है, भाषा का प्रभाव है, संस्कृत का महत्व है, वो हम डिस्प्ले करके उसका मिसकॉन्सेप्शन को दूर कर सकते हैं। ये है एक अच्छा सा टूल। इतना ही नहीं, और भी जान सकते हैं इससे, और भी पा सकते हैं, समाचार पा सकते हैं। आई थिंक हम यहाँ से शुरू करे थे कॉन्कॉर्डेंस का, तो ये है, शेयर कर रही हूँ। धातु पाठ है ये। पहले हम रूप एक धातु को चुनकर उसका 10 लकारों का रूप देख चुके हैं। बाद में एक धातु के ऊपर कितने प्रत्यय लगा सकते हैं, उन प्रत्ययों से कितने प्रातिपदिक बना सकते हैं, वर्ड जनरेशन पावर, वो सब एक एक धातु का हम जान सकते हैं। इतना ही नहीं, माधवी धातु वृत्ति, क्षीरतरंगिणी, धातु प्रदीप, सारे कमेंट्रीज है, जो प्रसिद्ध कमेंट्रीज है, उस कमेंट्रीज में एक एक धातु के बारे में कितना इंफॉर्मेशन दी है, कितना समाचार है, ये भी हम देख सकते हैं। मैं सिलेक्ट करी कौन सा है ये, माधवी धातु वृत्ति। तो माधवी धातु वृत्ति में भू धातु के बारे में क्या क्या बता चुका है।
रूपों के बारे में और प्रत्ययों के बारे में, कितने प्रत्यय लगा सकते हैं, कौन से रूप हो सकते हैं, ये सब समाचार यहाँ मिल रहा है। कितना है देखिए, तो केवल 3 वृत्ति यहाँ मिल रहे हैं, मगर काशिका वृत्ति भी है, शायद ये भी दिख रहा है, शेयरिंग द स्टैप, यस, ये माधवी वृत्ति दिख रहा है ना आपको। तो सिर्फ माधवी वृत्ति नहीं है, क्षीर स्वामी जी का वृत्ति भी देख सकते हैं, प्रदीप का भी देख सकते हैं वृत्ति, धातु प्रदीप का भी वृत्ति कमेंट्री देख सकते हैं। सिर्फ ये भी नहीं है, अभी भी बता चुके हैं, काशिका वृत्ति भी है और बहुत सारे वृत्तियां भी हैं, और उनका समावेश भी यहाँ कर सकते हैं। तो जो व्याकरण के स्टूडेंट्स है वो इस एरिया में, इस कोश के, धातु कोश के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो इस पार्ट ऑफ द रिसर्च संस्कृत कॉम्पिटिशन लिंग्विस्टिक में ये स्कोप है। और एक बताकर मैं कंक्लूड कर दूंगी। तो अभी अभी हम देखे थे कोशों के बारे में। हम मेन पेज पर आ रहे हैं, ये तो दिखाना चाहती हूँ, डिस्प्ले हो रहा है। जो भी डिक्शनरीज है, धातु डिक्शनरी, वो सब, वो संधि समासा टूल्स है, और नाउन जनरेटर, वर्ब जनरेटर, व्याकरण के स्टूडेंट्स, व्याकरण के छात्र काम कर सकते हैं। आप देखेंगे संक्षेप रामायण, शायद ये होम पेज दिख रहा है, ये देखिए, यहाँ संक्षेप रामायण 3 ई रीडर्स है, संक्षेप रामायण का, श्रीमद् भगवद गीता का, शिशुपाल वध का। बहुत सारे कॉलेजेस में, संस्कृत महाविद्यालय में शिशुपाल वध का अध्ययन होता है, रामायण का भी, भगवद गीता तो आम आदमी भी पढ़ता है। तो ई रीडर के माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ 3 टेक्स्ट, 3 ग्रंथों का, 3 काव्यों का समावेश है, या 3 ई काव्य मिल रहे हैं, मगर संस्कृत में हजारों काव्य हैं, लाखों में, हजारों में, लाखों में है। हर काव्य का ऐसा ई रीडर्स बना सकते हैं। इससे बहुत अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान बहुत आसान होगा। इसका मैं थोड़ा दिखाऊंगी कि कैसे कर रहे हैं। शिशुपाल वध का, शिशुपाल वध ऑफ माघा, साहित्य के स्टूडेंट्स, संस्कृत में भी बहुत सारे डिसिप्लिन है, दर्शन का डिसिप्लिन है, व्याकरण और वेद बाद में लौकिक वैदिक संस्कृत, वैदिक वाङ्मय, लौकिक वाङ्मय, वेद में भी ऐसा कर सकते हैं। लौकिक वाङ्मय में व्याकरण के एक डिसिप्लिन है, साहित्य का डिसिप्लिन है, साहित्य शास्त्र का एक डिसिप्लिन, और यहाँ साहित्य शास्त्र के स्टूडेंट्स, अनुसंधान क्षेत्र के स्टूडेंट्स, रिसर्च स्टूडेंट्स ऐसे टेक्स्ट को, ई रीडर्स को बना सकते हैं। ऐसे रीडर्स बनाने के लिए क्या क्या नियम है, कैसे टैगिंग करते हैं, मैं दिखाना कैंटोस यहाँ है। यहाँ देखिए, 10 कैंटो, 10 सर्गों का ई रीडर बन चुका है। मैं पहला कैंटो का पहला श्लोक लेती हूँ। ये देखिए, अजस्रमा स्फालित वल्लकी गुणोज्ज्वलांगुष्ठ नकाम शुभिन्नया, ये श्लोक 9 श्लोक है, 9th श्लोक है। मैं पहला लेना चाह, पहला श्लोक है, श्रियः पति श्रीमति शासितुम। तो इसका ऐसा विश्लेषण मिल रहा है। देखिए, हम क्या पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, इसके बाद पद विभाग, अन्वय क्रम, हिंदी भावार्थ, इंग्लिश ट्रांसलेशन सब लेते हैं। हाँ, ये देखिए, डिफरेंट कलर्स मिल रहे हैं हमको। तो
एक एक विभक्ति के लिए एक एक वर्ण का अलॉटमेंट हुआ है। और प्रथमा विभक्ति डिस्प्ले करने के लिए एक कलर लाइट ग्रीन कलर, सो द्वितीय विभक्ति के लिए थोड़ा डार्क कलर, तृतीय विभक्ति के लिए रेड कलर, चतुर्थी विभक्ति के लिए ऐसा कलर कोड दे चुके हैं। ये है लिंग्विस्टिक्स रूल्स, कॉम्पिटिशन लिंग्विस्टिक्स रूल्स। सो यहाँ हम ऊपर जो श्लोक देख चुके हैं उसका पदवी भाग है, वो पदवी भाग अगर प्रथमा विभक्ति है तो कलर कोड से हम जान सकते हैं कि श्रेयः ये षष्ठी विभक्ति है, और पति ही जगन निवास हरि ही, इन तीनों का कलर एक ही है, तो लाइट ग्रीन कलर है। तो ये सभी प्रथमा विभक्ति के लिए एक कलर कोड है। तो एक कलर कोड से हम जान सकते हैं कि ये प्रथमा विभक्ति प्रथमांत पद है। बाद में जगत है, जगत शासितुम श्रीमती वसुदेव सद्मनि वसन्। तो ई टेक्स्ट बनाने के लिए ऐसे कॉम्पिटिशन लिंग्विस्टिक्स दृष्टि से ऐसे कलर कोड देते हैं। उसके बाद वृत्त क्या है, और भी जान सकते हैं कि अगर कुछ समास समस्त पद है, श्लोक में समस्त पद है, तो उसका टैगिंग ऐसे कर रहे हैं। देखिए, हिरण्य गर्भांग भुवम ये है, तो नीचे उसका टैग्ड डेटा है हिरण्यगर्भ, क्योंकि क्या बोलते हैं, हिरण्यगर्भ एक समस्त पद है और षष्ठी तत्पुरुष T6, तो उसका टैगिंग कर रहे हैं T6। तत्पुरुष के लिए टैग T है, अगर प्रथमा द्वितीय तत्पुरुष है तो T2, तृतीय तत्पुरुष है तो T3, चतुर्थी तत्पुरुष का टैग है T4, पंचमी T5, षष्ठी T6, सप्तमी T7। तो एक एक एनालिसिस करने के लिए, समास का एनालिसिस करने के लिए कितने समास है, समास के कितने प्रकार है, एक एक प्रकार के लिए क्या क्या टैग देना चाहिए और उसका डिस्प्ले कैसे करना है। ये तो षष्ठी तत्पुरुष गर्भ बहुरी समास है, तो इसका टैगिंग ऐसे करे। देखिए, हिरण्य गर्भ षष्ठी तत्व, फिर बाद में और एक षष्ठी तत्पुरुष है हिरण्य गर्भस्य अंगः, पुनः हिरण्य गर्भांगस्य भूः, ये पंचमी तत्पुरुष है। हिरण्य गर्भांगात भूः, पंचमी तत्पुरुष। इसका टैगिंग मैं इसको दिखा रही हूँ, ये टैब दिख रहा है क्या? सिर्फ समास पद का विश्लेषण। तो ऐसे विश्लेषण मशीन एनालिसिस है, ये मशीन एनालिसिस स्टेप वाइज इसको दिखा रहे हैं। देखिए, हिरण्य गर्भ षष्ठी तत्पुरुष, उसके बाद अंग से हिरण्य गर्भ और अंग, पूर्व पद हिरण्य गर्भ हुआ, बाद में उत्तर पद अंग, इन दोनों से हिरण्य गर्भांग समस्त पद मिल रहा है। हिरण्य गर्भांग के बाद भू, पूर्व पद हिरण्य गर्भांग हो रहा है और उत्तर पद भू, इन सारे इतने सारे समस्त पदों का समावेश से हिरण्य गर्भांग भूहु मिल रहा है। तो एक एक स्टेप वाइज इसका समास का टैगिंग कर रहे हैं। T6, बाद में अंत में T5। तो तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, ये पंचमी तत्पुरुष ऐसा या मशीन एनालिसिस के लिए, समास का समस्त पद का मशीन एनालिसिस के लिए टैगिंग का गाइडलाइंस बनाते हैं। तो T6, T5, बहुरी समास के लिए B, द्वंद्व समास के लिए D, यहाँ वसुदेव सद्मा है, देखिए एक और एक समस्त पद, और इसका भी विश्लेषण हम पा सकते हैं। T6 बोले तो षष्ठी तत्पुरुष, पूर्व पद और उत्तर पद, समस्त पद, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ मिलता है। और ये ई रीडर है, महाकाव्य का ई रीडर। ऐसे हम हर एक श्लोक का पदवी भाग, अन्वय क्रम, हिंदी अर्थ, व्याकरण का विश्लेषण सब देख सकते हैं। ये तो पद विभाग है कलर कोड के साथ। एक कलर कोडिंग कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्ट बनाते हैं, किस विभक्ति के लिए कौन सा वर्ण देना है। और ऊर्ध्व उज्ज्वलम, ये देखिए, और एक समास का विश्लेषण दिखा रही हूँ, मशीन विश्लेषण, यांत्रिक विश्लेषण। डिस्प्ले नहीं हो रहा है।
हवीज बुक, हाँ हवीज बुक उपपद तत्पुरुष है हविस, हविषः भुक् हविष बुक, हविस् हविः भुङ्क्ते इति हविर् हविष बुक हविर बुक। मैं एक वेबसाइट को लेकर जो भी टूल्स है, मेजर टूल्स है, उसका डिस्प्ले करके प्रदर्शन करके थोड़ा दिखाकर मैं बता चुकी हूँ। जहाँ यहाँ इस कार्यक्रम में जो भी उपस्थित है वो और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक एक टूल को देख सकते हैं, एक एक टूल का इस्तेमाल कैसे करना है, इनपुट कैसे देना है, आउटपुट कैसे मिलता है और किसको एनालिसिस इसको कैसे समझना है, वो सब इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे। और इस जो संस्था है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उस डिपार्टमेंट के विद्वान बहुत सारे वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन संस्कृत एकेडमी की तरफ से भी इसके वर्कशॉप्स होते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। वो तो बहुत 4-4 दिनों का, नहीं तो 1 हफ्ते का, 10 दिन का ऐसा कार्यशाला ऑर्गेनाइज होता है। उस ऐसे लेंदी ज्यादा ड्यूरेशन जहाँ रहता है, उस ऐसे वर्कशॉप में, ऐसे कार्यक्रम में आप भाग लेकर पूरा जानकारी पा सकते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। यहाँ इस एक घंटे में और 1.5 आवर ड्यूरेशन में पूरा दिखाना बताना बहुत मुश्किल होता है। और एक सेंटेंस एनालाइजर भी है। इसका और एक दिखाना चाहते हैं विशेषता, एक एक श्लोक का कारक विश्लेषण भी हम दिखा सकते हैं, वो दिखाना जरूरी है। श्लोक का विश्लेषण, कारक विश्लेषण, 1 मिनट में मैं खत्म कर देती हूँ। ये संक्षेप रामायण का ई रीडर है, इसके बारे में थोड़ा दिखाकर मैं खत्म कर दूंगी। अगर ग्रंथ को लेकर हार्ड कॉपी लेकर हम पढ़ेंगे तो पदविच्छेद ये सब दिखाएंगे और पढ़ाएंगे। छात्र भी इतना ही पढ़कर लिखते हैं, मगर ये ई रीडर से हमको और भी समाचार मिलता है। गंभीर अध्ययन अनुसंधान भी कर सकते हैं। 1 मिनट, हाँ शायद आपको ये दिख रहा है, रामायण प्रथम श्लोक तपस्वाध्याय निरतम और समास पद का विश्लेषण। इतना ही नहीं, तो तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच वाल्मीकि मुनिपुंगम, ये श्लोक है। इसका पूरा कलर कोड के साथ पद विच्छेद, प्रतिपदार्थ तात्पर्य अंग्रेजी में, हिंदी में, समस्त पदों के बारे में विश्लेषण मिल रहा है। न केवल इतना ही, एक एक श्लोक का कारक विश्लेषण, ये देखिए शायद डिस्प्ले हो रहा है। कारक विश्लेषण, हर श्लोक का कारक विश्लेषण ऐसा मिलेगा। तो इस श्लोक में जो भी है धातु क्रियापद जो भी है, उसका कर्ता कौन है, कर्म क्या है, जितने शब्दों का प्रयोग हुआ है, उन शब्दों का कारक विश्लेषण क्या है, ये ई रीडर बताएगा। तो परिपप्रच धातु है, उसका कर्ता है वाल्मीकि, वो वाल्मीकि शब्द का विशेषण क्या है, तपस्वी। और परिपप्रच धातु का क्रियापद का कर्म क्या है, नारद। नारद का विशेषण कितने हैं, तपस्वाध्याय निरतम, वरम, मुनिपुंगवम। और ये वरम, इसका निर्धारण भी है, वाग्विदाम, निर्धारण षष्ठी वाग्विदाम है। ऐसा हर एक श्लोक का कारक विश्लेषण हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग एक संप्रदायबद्ध गुरुकुलों में, संप्रदाय विधान में अध्ययन हो रहा है, और रिटायरमेंट के बाद नहीं तो कंप्यूटर साइंस वाले
इन कंप्यूटर साइंस वाले भी पढ़ना चाहते हैं संस्कृत। ऐसे टूल्स मिलेंगे तो, ई रीडर्स मिलेंगे तो उन लोगों को जल्दी समझ में आएगा और इसका डेप्थ क्या है, एक एक शास्त्र का, शास्त्र हो या काव्य हो, कुछ भी हो, कुछ भी टेक्स्ट हो, ऐसा आविष्कार, ऐसा टूल मिलने से उन लोगों का आसान होता है, गंभीर अध्ययन कर सकते हैं और आगे वो भी दे कैन बिकम ए पार्ट ऑफ रिसर्च और स्टडी एनीथिंग। तो यहाँ 3 ई रीडर्स मिल रहे हैं, मगर सभी काव्यों का और सभी शास्त्रों का ऐसा ई रीडर्स मिलने से अध्ययन सुकर बन जाएगा, इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। कवि हृदय का भी आविष्कार होगा। संस्कृत का जो भी साइंटिफिक नेचर है उसको प्रमाणित कर सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं, इसका रेलेवेंस बता सकते हैं और संस्कृत अध्ययन का पुनरुद्धार भी कर सकते हैं। मैं इनका बेनिफिशियरी, जो भी टूल्स हैं उनका बेनिफिशियरी मैं ही हूँ। ये टूल्स मैं डेवलपर्स के साथ भी काम कर चुकी हूँ और यूजर्स के माध्यम, यूजर्स, आई एम ए यूजर ऑल्सो, आई एम वन अमंग द डेवलपर्स एंड वन अमंग द यूजर्स। डेवलप करने के लिए भी मेरा कंट्रीब्यूशन है और यूटिलाइजेशन में भी मेरा कंट्रीब्यूशन है। अभी जो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है मैं जिसमें काम कर रही हूँ, सिलिकॉन आंध्रा यूनिवर्सिटी, वहाँ मैं पीडीएफ या सॉफ्ट कॉपी कुछ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, सीधा ये ई रीडर्स नहीं तो ये टूल्स का इस्तेमाल करके धातु रूप, शब्द रूप और धातु रूप पढ़ाती हूँ और ये टेक्स्ट भी, ई टेक्स्ट से ही मैं अध्यापन करती हूँ। और मेरा रिसर्च अनुसंधान क्षेत्र है, संस्कृत एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हर रोज मुझे डिक्शनरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, डिक्शनरी यूसेज बहुत रहता है। तो यही डिक्शनरीज, ये ऑनलाइन डिक्शनरीज, यही नहीं बहुत सारे वेबसाइट्स में ऑनलाइन डिक्शनरीज मिलते हैं, ऑनलाइन डिक्शनरीज का ही इस्तेमाल करते हैं। पहले तो बहुत श्रम साध्य होता है अनुसंधान, 10 डिक्शनरीज को लेकर मैं पूरा फैला कर, टेबल के ऊपर फैला कर एक एक सर्च करके ढूंढकर मैं समाचार लेकर, पदों का, शब्दों का समाचार लेकर लिखती थी, मगर अभी काम आसान हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे पुस्तकों का, बहुत सारे ई रीडर्स का, टूल्स का डेवलप आविष्कार करना चाहिए। तो इस एरिया में शोध छात्र बहुत सारा काम कर सकते हैं, स्कॉलर्स भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे अभी ग्रामर, व्याकरण शास्त्र के प्रकांड पंडित हैं। आई थिंक इस कार्यक्रम में भी जो चीफ गेस्ट है वो व्याकरण पंडित है, जो परिचय इंट्रोडक्टरी लाइंस बताए थे, मैं सुन चुकी हूँ, जान चुकी हूँ कि वो व्याकरण स्कॉलर है। तो ऐसा वो आविष्कार कर सकते हैं, टूल्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही वाइड रिसर्च एरिया है। तो इतना ही मैं बोलकर मेरी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। मैं हिंदी भाषी, आई एम नॉट ए हिंदी स्पीकर, नेटिव स्पीकर, तो मेरे हिंदी थोड़ा अशुद्ध, व्याकरण दृष्टि से अशुद्ध होगी, मगर आप सार लीजिए। और हमारे संस्कृत सूक्ति है, सारम गृह्णातु फल्गु क्षिप्त्वा, ऐसा आप सार लीजिए। एक नया दृष्टि से, इस दृष्टि से भी आप शोध छात्र काम कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजर्स को और श्रोताओं को मैं कृतज्ञता वचन समर्पित करके विराम देती हूँ वाणी को। बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णलक्ष्मी कांद्रेकुला मैम आज अपना जो विषय है उपस्थापित की है। हम सभी शोध छात्राओं के लिए जो फलप्रद होगा, मैं जो जहां तक मेरा विचार है। और अभी मैं विशेष रूप से हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर गिरिधरी पंडा सर को अनुरोध करूंगा आज के सत्र के विषय में अपने 2-4 शब्द रखने के लिए। सर,
पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर स्वयं शासित महाविद्यालय के संस्कृत स्नातकोत्तर विभाग के सहयोगी अध्यापक है। महोदय। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अयमन्याः अत्र समुपस्थिताः DSS एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इत्यस्य वरिष्ठ सदस्याः अनुजकल्पाः अमित कुमार दे महोदयाः अन्ये अनुजकल्पाः अनंत मुखोपाध्याय महोदयाः अत्र विशेषतः यासां मुखनिश्चितवाणीतः न तु केवलं मुखनिश्चितवाणी अपितु कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स पाणिनेः अष्टाध्यायः भवतु अथवा संस्कृतशास्त्रस्य ये खलु विषयाः सन्ति तेषां विषयाणाम् उपरि यान्त्रिकमध्ये तत्र सूचितं कृत्वा संस्कृतशास्त्रस्य विकसनाय ये खलु सर्वदा चेष्टां कुर्वन्ति याश्च कुर्वन्ति तासु तेषु वा अत्र अस्माकं मध्ये समुपस्थिताः डॉक्टर के बारालक्ष्मी महोदयाः तेषां कृते नतनपिः प्रणतिः एवं च अत्र अस्याम् आलोचनासभायां कर्मशालायां वा समुपस्थिताः लेडी ग्रेगन कॉलेज महाविद्यालयस्य विभागीय मुख्याः डॉक्टर सुतपा रॉय महोदयाः अन्ये अत्र ये खलु समुपस्थिताः मलयदोलोई महोदयाः गवेषकाः विद्वांसः छात्राः छात्राश्च। प्रथमतः अहं दुःखप्रकाशं करोमि यत् 7:15 प्रारंभः जातः परन्तु विशेष कारणवशतः 7:30 मम अत्र संयोजनं जातं। प्रायतः 40 निमिषं यावत् अत्र मया यानि तथ्यानि दृष्टानि तानि तथ्यानि किं वा कथयितुं शक्नोमि। अस्माकं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस इति यदस्ति तस्मिन् मध्ये एतानि तथ्यानि न केवलं गवेषकाणां कृते उपकारकानि भविष्यन्ति अपितु अधुना खलु ये छात्राः डिजिटल इंडिया मध्ये पठन्ति तेषां पठनं पाठनं यदि अनेन माध्यमेन नाम कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक माध्यमेन भविष्यति मन्ये अहं ये संस्कृत लैंग्वेज इज द साइंटिफिक लैंग्वेज इति यत् वक्तव्यम् आसीत् अथवा अस्ति मम कथनस्य अभिप्रायः अत्र वार्क मध्ये वा कर्मशाला मध्ये अहम अधुना एतत् श्रुत्वा महोदयानां तथ्यानि दृष्ट्वा मम चिन्तने अपि आगच्छति कथं वा महोदयानां समयं नीत्वा अस्माकं महाविद्यालये अपि कम्प्यूटेशनल लैंग्वेज लिंग्विस्टिक माध्यमेन छात्राणाम् अध्ययनं वा अध्यापनं न वयं करिष्यामः इति मम चिन्तनम् अस्ति। तत् भवतु सत्यमेव उक्तम् अमी तु अत्र गवेषकाः प्रायतः बङ्गवासिनः सन्ति तेषां कृते मम आशीर्वचनं नाम अत्र
निवेदनमपि कथयितुं शक्यते। छात्राः गवेषकाः चिन्तयन्तु। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করো পাণিনি অষ্টাধ্যায়ীর ধাতুপাঠ। We know that the Ashtadhyayi of Panini is the most important for our language system. Actually, the computational language, computational linguistics build software that will analyze, understand, and generate languages that humans use naturally, so that eventually human-machine communication may be the ordinary spoken or written language. अहम एतत् वक्तुम् इच्छामि। जस्ट लोक सबाई एकटु नजरे राखो धातुपाठ। Actually, there are most probably 1944 the roots are there in the Dhatupath of Ashtadhyayi. The meaning or meanings are also given, but the tradition is that these meanings were added by one, just like this. अत्र गवेषणीयं यत् कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक मध्ये सर्वेषां धातूनाम् एकस्य क्लिक माध्यमेन तत्र भूधातु इत्यस्य बभुव भवतु, भविता भवतु, भविष्यति भवतु, अभवत् भवतु, ये खलु 10 वा जानि खलु 10 लकाराणां रूपाणि सन्ति इति तेषां विषये वयं प्राप्नुमः। अत्र मम आवेदनं गवेषकाणां कृते तत्रापि गवेषणीयं वा गवेषणायाः विषयः विद्यते। From roots not found in the Dhatupath, Panini's Dhatupath, but Panini has written regarding about that those dhatu. सूत्र माध्यमेन पाणिनेः तत्र कानिचित् धातूनै केषाञ्चित् धातूनाम् उल्लेखः विद्यते। यथा वयं वक्तुं शक्नुमः ते खलु स्तोत्रधातवः, येषाम् उल्लेखः धातुपाठे न विद्यते। तेषां विषये अपि गवेषणा अवश्यं करणीया, साधनीया वा। They are treated just like those found in the list when being conjugated. এছাড়াও এতৎ ব্যতিরিচ্য तत्र सन, क्यच, काम्यच, स्यं इत्यादयः प्रत्ययाः सन्ति, येषां व्यवहारेण धातूनां तत्र नूतनतया कानिचित् रूपाणि समागच्छन्ति अस्माकं समीपे। तेषां विषये अपि गवेषणा अवश्यं कर्तव्या। यथा अस्माकं कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक मध्ये अस्ति, वयं तत् स्मरामः। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नियते प्रहाराहार संहार विहार परिहार। तत्र उपसर्गाणां द्योतकत्वं भवतु वा वाचकत्वं भवतु, उपसर्गाणां प्रयोगे ह्रीधातोः अस्ति। तत्र आ इति उपसर्गस्य प्रयोगे आहारः भवति, अप इति उपसर्गस्य प्रयोगे अपहारः, अपहरति इति प्रयोगः भवति ह्रीधातुः। पुनश्च वि इति उपसर्गस्य प्रयोगे विहरति, आहरति। एवं प्रकारेण प्रहरति प्र इति उपसर्गस्य प्रयोगे। चिन्तयन्तु, वैज्ञानिकी एषा प्रक्रिया कीदृशी वैज्ञानिकी विद्यते। আসলে আমরা তার ভেতরে ঢুকি না, জাস্ট উই আর লার্নিং দিস। এই লার্নিং এর মধ্যে আমার মনে হচ্ছে এই যে কম্পিউটেশনাল লিঙ্গুইস্টিক কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে মিলিয়ে বিশেষ করে ম্যাডাম যে কাজগুলো করছেন, সত্যি এর পরে আমাদের প্রজন্ম, তার পরের প্রজন্ম, তাদের জন্য ইটস টু ইজি
আমাদের জন্য খুব সুবিধা। Just in one click, we can know about the Dhaturup, about that word particularly. यथा मैडम महोदयी तत्र प्रदर्शितं विष्णु इति शब्दस्य तत्र लक्ष्मी, विष्णु इति शब्दस्य ये खलु धारिणः सन्ति तेषां विषये। This work is not so easy, but they are doing. তারা করেই যাচ্ছে। তো আমাদের সেগুলো কারণ আসলে আরো there are so many things, আরো অনেক আছে যেগুলো করার আরো দরকার। আমি উইথ রেসপেক্ট ম্যাডাম যেটা বলেছেন সেটাই বলছি, আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। রিসার্চ, এই যে গবেষণায়াः পরিসরः, সার্চ টু রিসার্চ গবেষণায়াः অনুসন্ধানম সত্যমেব উক্তম। খুব ভালো এটা বলা হয়েছে, গবেষণারও অনুসন্ধান করতে হবে। তো আমরা এই বিষয়ে এগিয়ে আসতে চাই। দোজ হু ওয়ান্টস টু ডু রিসার্চ ওয়ার্ক, রিসার্চ যারা করতে চাইছে তারা অবশ্যই এইভাবে এই কাজগুলোকে আরো এগোতে হবে। সব গ্রন্থকে কম্পিটিশনাল লিঙ্গুইস্টিকের মাধ্যমে নিয়ে আসতে হবে, খালি পাণিনি গ্রন্থ নয়। অষ্টাধ্যায়ীর তো এখনো অনেক কাজ বাকি আছে। আমি খুব উপকৃত হচ্ছি ম্যাডাম, এবং আমি সবাইকে বলবো অফকোর্স মানে এইরকমের প্রোগ্রামে তোমরা জয়েন করো, আর এই যে নলেজ নিয়ে আবার তোমাদের ছাত্রদের সম্মুখে রাখো। বিশেষ করে গবেষণা কাজে যারা যুক্ত আছে তারা এই ধরনের গবেষণা করে। এবং আমি আবার থ্যাঙ্কফুল, আমি খুব ধন্য মনে করছি। আমি নিজেকে, আমাকে ডাকা হয়েছে বলে নয়, সত্যি এই বিএসএস এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট এই ধরনের প্রোগ্রাম নাকি এই ধরনের প্রোগ্রাম করাটা বিশেষ করে গবেষকদের জন্য সত্যি খুব প্রশংসনীয় কাজ। আমি আবার তাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা রাখছি, সবার কাছে আবেদনও রাখছি, যেমন এই যে বিষয় নিয়ে বিভিন্ন প্রকার তোমরা গবেষণা কাজ এগিয়ে যাও। अगेन थैंक्स टू मैडम। আমি एक्चुअली मैं बहुत उपकृत हुआ हूँ। पाणिनि के जो अष्टाध्यायी जो लोकोलोचन में नहीं आ पा रहा है, सब लोगों का सूत्रों के साथ उसका वृत्ति करना, ये कर्तुदीक्षिततमं कर्म तत्र कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्म संज्ञं स्यात्, पुनश्च कारकस्य किं लक्षणं पतंजलि मतानुसारेण क्रिया निष्पादकत्वं कारकत्वं नागेशेन उक्तं भर्तृहरिणा उक्तं शक्तिरीति कारकत्वं। तत्र महती चर्चा विद्यते शास्त्रकारेषु, परन्तु अस्मिन् समये कम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक माध्यमेन एतेषां यत् तात्पर्यं तात्पर्यस्य अवबोधनम् अत्यन्तं सुकरं भविष्यति इति अहं मन्ये। पुनः पुनः सर्वेभ्यो मदीयं शुभेच्छाम् अभिनन्दनं, मदीयं प्रणतिं सर्वेभ्यो विनिवेद्य मम संक्षेप वचनं समापनं करोमि। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমাদের সত্রে উপস্থিত থেকে এইভাবে আমাদেরকে উৎসাহ প্রদানের জন্য। मैं मैम को भी धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ सभी रिसर्च स्कॉलर्स के पक्ष से। अभी औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, सभी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं मलय दलवी को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ। मलय दलवी, आप धन्यवाद ज्ञापित के माध्यम से और शांति पाठ के माध्यम से सत्र समाप्ति की ओर बढ़े। मैं गिरिधारी पंडा जी को धन्यवाद प्रदान करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू गिरिधारी पंडा जी, एंड आई फील फॉर्चुनेट टू हैव यू अट दर्शनम, सौभाग्य दर्शन भवतां दर्शन भाग्येन अहम् आत्मानं धन्यं मन्ये। भवतां विद्वत् प्रपूर्ण भाषणेन अपि अहम् आत्मानं धन्यं मन्ये। आयोजकेभ्यः अहं भूयो भूयो धन्यवादान् समर्पयामि। एतादृशम् अतीव उपकारी कार्यक्रमं
प्रायः मम सर्वेषु कार्यक्रमेषु एतत् मूर्धन्यस्थानम् अलङ्करोति। एतत् केवलम् अनुसन्धानदृष्ट्या आयोजितः एषः कार्यक्रमः शुद्ध त्रिकणशुद्ध्या आयोजितः। श्रद्धालवः छात्राः शोधछात्राः भागं गृह्णन्ति। गिरिधरी पाण्डा महोदय सदृशाः विद्वत्तल्लजाः अत्र भागं गृह्णन्ति। अत्र भागं गृहीत्वा व्याख्यानं दत्तवती। एतत् मम पूर्वजन्मसुकृतम् इति मन्ये। धन्यवादः। मलय नमो नमः। अद्य अस्माभिः सह उपस्थिता आसीत् श्रद्धेय अध्यापिका वर्णलक्ष्मी कान्द्रेगुला महाभागाः। अहं ताभ्यः VSSEI सर्च टू रिसर्च तः धन्यवादं कार्तज्ञं च विनिवेदयामि। इहं खलु संस्कृतभाषाशास्त्रेषु सङ्गणकस्य का भूमिका तच्च स्वीकृत्य आगामिषु दिवसेषु अस्माभिः किं नूतनं शोधकार्यं कर्तुं शक्नुमः तस्य एका सुस्पष्टा रूपरेखा प्राप्ता। नूनं तत् सर्वम् आगामिनां शोधार्थिनां कृते फलदायिका मार्गप्रदर्शिका च भविष्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहावकाशः। अपि च अद्यतने सत्रे सञ्चालकरूपेण उपस्थितः आसीत् अस्मदीयः अग्रजप्रतिमः अमितकुमार दे। तस्मै च धन्यवादः। अस्माकम् एषा ह्लादिनी परिस्थितिः यत् अस्माभिः सह उपस्थिताः आसन् मेदिनीपुर स्वयंशासितमहाविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य प्रधानः गिरिधारी पण्डा महाभागाः। तेभ्यः अपि धन्यवादं व्याहरेम। सुतपाराय महाशयाः अस्माभिः सह सदैव उत्साहप्रवर्तिकारूपेण तिष्ठन्ति। ताः अपि धन्यवादं ज्ञापयामि। इदानीं शान्तिपाठस्य माध्यमेन अहं सत्रं समाप्तिं प्रति गच्छामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्रानुपश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः। सभी को सादर धन्यवाद अभी तक हम सबके साथ उपस्थित रहने के लिए। मैं विशेष रूप से वर्णलक्ष्मी मैम को और गिरिधरी पंडा सर को हमारे संस्था की तरफ से और सभी श्रोत्रियों की तरफ से धन्यवाद निवेदित करता हूँ। तो आप लोगों के अनुमति को लेकर हम लोग सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। सर मैम शुभरात्रि। हाँ, शुभरात्रि। धन्यवाद। शुभरात्रि।